So what's up, guys? I think we can start with something if you have something. There aren't very many people around yet. Hi Shashank, would you be turning on your video? Yeah, I Would be guess. good to. All right, I'll turn on the video for some time. Okay, so what's up? It was too sunny outside. You tell me. What are you doing in Beerwilling? I live here. I'm living here. Since when? I thought you were Delhi based. Daily based, I was. Yeah, that's my home, but then I live here. Mhm. Mhm. Hi, Shashank. Hello, what's up? All good, all good. The You're iPad looking alarm. fabulous. So Shashank, I don't know if you remember me from Eatlo days. We've done a couple of walks together or a couple of events together. Akhilesh always wanted to do Eatlo events, but somehow hasn't. I don't think he's attended any. We are currently based in Bombay, so we are also from Delhi. Yes, yes, yes. I think I do remember you, but unfortunately don't remember the name right now. Can't recall. But I do remember. I do remember your voice. I do remember your face. I do remember you for sure. Remember we went to Lotus Leaf in Rohini? Oh yeah. Yeah. So Yeah. after that, we did I think, Ramzan walk in. I'm missing the name of the area near Holy Child Hospital. That's Hmm. where we did Ramzan walk. That was my first Eatlo event, and then I went to Lotus Leaf with you guys. Yeah. The part he's missing is her name is Ankita. Thank you so much, Akhilesh. So what are you guys doing in Bombay? Living a happily ever after? Getting fat together? Oh, No offense. We're getting fat together, living happily ever after. I think that is only for fairy tales. Yeah, that's so true, no? I'll wait for okay, Sangeeta is here. I think we can start the conversation anyhow. If you have some specific questions and stuff, we can start going about it because it's my first mhm, time. I need to warm up myself, you know. So please help me mhm. figure my way around this thing. Okay. So I think the description that you wrote, you talked about that you understand the physical and emotional pain of being a bigger person, and then that journey from a bigger person to a normal sized person. First of all, congratulations on your journey. Thank you. My question actually to you is that how do you get over that emotional craving of eating food? For a lot of us, especially for me, food is an emotional issue. True, You that's so. know, खाना है तो तुम खुश हो, तुम दुखी हो तो तुम खाते हो, तुम सुखी हो तो तुम खाते हो types, and that's where you put on that weight. It's not that we were really born with so much weight. It's more of the way we eat. Like for me, my guilty pleasure is sweets. मैं खुश हूं तो मुझे मीठा चाहिए, मैं दुखी हूं तो मुझे मीठा चाहिए. How do you get over those cravings, and how do you control them to ensure that you can get onto a better path in life? यार ये ना एंडलेस लूप है बेसिकली. एंडलेस लूप क्यों है कि आप जो मीठा खा रहे हो ना वो आपको और Hmm. क्रेविंग दे रहा है और वो कुछ Hmm. नहीं होगा उसके अलावा. ठीक है, Hmm. तो उसका जो मैंने सोल्यूशन निकाला वो निकाला कि बेसिकली मैक्रोस पे अपने ध्यान देके यू शुड व्हेन Hmm. यू आर ईटिंग, यू नो, बहुत Hmm. सिंपल सोल्यूशन है इसका. अभी ये साउंड बहुत सिंपल करेगा बट एज वी डेल्व डीपर इनटू इट देन इट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स. व्हेन यू हैव टू इंटीग्रेट इनटू Hmm. life it becomes more complex, but it sounds really Hmm. simple. The simplicity is Hmm. eat more protein and eat more fats in your daily, Hmm. right? So let's say you are Hmm. eating 2,000 calories in a day, right? So out of those 2,000 calories right now, you are end up eating around 1,200 to 1,500 calories in the carbs in form of fruits, in form Right. of dairy, in form of sugar, in form of bread, in form of rice, in form of all those things, right? So you have to Hmm. be extremely careful about that intake and cut it down to, let's say, less than 500 calories, the carbs, right? Okay. So all the Okay. emotions that you are feeling, you know, all the hormones, all the triggers, they are all generated from inside, right? It's nothing which is coming Hmm. from outside. They're all your Hmm. chemicals, they're all your all those things that are inside your body, right? So what you feed your body defines how your hormones also behave, right? So once we are eating Hmm. enough protein,
we are taking sufficient fats and proteins in our body, what it does is it generates the right kind of hormones, right? So, and it helps us stabilize the mood. It helps us feel more full, right? और जो उसकी वजह से आपको फिर स्टेबिलिटी आने लगती है. So the strategy that is hack to head is like for a couple of weeks, mind your macros, don't eat less, eat more protein. ज्यादा पनीर खाओ, ज्यादा चिकन खाओ, है ना, ज्यादा घी खा लो, कोई बात नहीं, you know, overload yourself, but not with carbs, right? Or with good food, right? Good food में जो आपके प्रोटीन्स हैं वो अलग अपना डिस्कशन है. अब जो नहीं आप नहीं अगर समझते हो कि प्रोटीन क्या है या हाउ टू डिस्क्राइब योर मैक्रोस, विल गेट इनटू दैट एज वेल, राइट? बट थिंग्स व्हिच हैव मोर प्रोटीन आर द थिंग्स दैट शुड बी फोकसिंग ऑन, और कार्ब्स को मिनिमाइज. तो 2 हफ्ते अब पेट भर के चिकन टिक्का खा लो, चिकन ब्रेस्ट खा लो, फिश खा लो, पनीर की चीजें खा लो, सॉसेजेस खा लो, you know, biryani बना के खा लो with only very little rice, more ghee and more chicken and more mutton or more whatever is your meat, you know. खिचड़ी खा लो with less dal, more dal and less rice and lot of ghee and cheese, you know. वेजीज के अंदर आलू को वेजी बोलना छोड़ दो, ठीक है ना, कि सब्जी बना रहे हैं तो आलू बना रहे हैं. नहीं भाई, आलू सब्जी नहीं है, आलू इज अ कार्बोहाइड्रेट, फॉरगेट दैट, यू नो. आई मीन यू हैव टू यूज इट स्ट्रेटेजिकली, बट हमारे इंडियन कल्चर में हर चीज में आलू की सब्जी, मतलब आलू को सब्जी समझ के खाते हैं हम, but that is not the right way to do it, you know. So that is हमारे बनियों में तो बोलते हैं ना, बनिया ने आलू नहीं खाया तो क्या खाया. हाँ, तो मतलब that's how we grown up. हाँ, तो आलू में आलू खाओ, मैं मना नहीं कर रहा, बट मतलब उसे सब्जी समझ के मत खाओ यार, कि मैं रात सही को. बात है. हाँ मतलब हम आलू को सब्जी समझ के खाते हैं, यू नो. सो ऑल दीज थिंग्स छोटी छोटी चेंजेस हैं कि इनिशियल 2 वीक्स के अंदर थोड़ा अपने आप को ज्यादा भर के रखोगे, कैलोरी थोड़ी ऊपर भी जाएंगी, ठीक है, मगर 2 हफ्ते में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आने लग जाती है फिर, कि आपका पेट भरा रहता है, ठीक है ना. पेट हमेशा भरा रहता है तो आपको कुछ और खाने का मन नहीं करता है. बॉडी के अंदर इनफ प्रोटीन जाएगा, इनफ ये सब चीजें जाएंगी, तो अपने आप ही देखो हार्मोनल चेंज आपके इमोशंस को चेंज करता है, राइट. तो एक तो एस्पेक्ट ये होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो वो आपको इमोशनल स्पाइक देता है ऐसे, और फिर ऐसे क्रैश देता है, ठीक है, कि वो आपको एकदम से एनर्जी देगा, एकदम से हाई देगा, उससे आप एकदम ऐसे चले जाओगे, मगर वो उतनी स्पीड से ही नीचे आएगा. तो आपके इमोशंस उससे डिस्टर्ब होते हैं, आप उससे और डिस्टर्ब होते हो, आप उसको फिर सेटिस्फाई करने के लिए कार्ब दोगे, वो फिर ऊपर जाएगा, वो फिर ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना. दैट इज नॉट द वे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. द वे इज कि अपने आप को भर के रखो प्रोटीन और फैट से, जो ऐसे चलते हैं, rather than ऐसे वो ऐसे चलते हैं, ठीक है ना. प्रोटीन और फैट से भर के चलो, अपने आप ही आपको कम खाने का मन करेगा कार्ब्स, अपने आप ही आप कहोगे यार मेरा तो भूख ही नहीं है, मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी अच्छी चीजें भरी हुई होंगी, ठीक है. उसके बाद जब आप इनफ प्रोटीन खाना शुरू कर देते हो, आपके अंदर इनफ हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, जिससे आपका एनर्जी लेवल भी अपने आप ऊपर जाने लग जाता है. आपको फिर जो अभी बैठे बैठे ठस होके मजा आ रहा है, फिर आपकी बॉडी आपको बैठने नहीं देगी. जो आपके हार्मोन्स अभी आपको दूसरी चीज खाने पे मजबूर कर रहे हैं, वही हार्मोन्स आपको हिलने पे मजबूर करेंगे. ओके. अंदर से ऐसा रिएक्शन आएगा, अबे यार बैठा ही नहीं, मेरे साथ होता है, अबे यार बैठा ही नहीं, अपने आप ही मैं खड़ा होकर स्ट्रेच करने लग जाऊंगा, अपने आप ही खड़ा होकर धूप में जाके कुछ कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी हाथ ऐसे, कभी वैसे, यू नो, हर 15-20 मिनट में, क्योंकि प्रोटीन इनफ जा रहा है सिस्टम के अंदर, तो एनर्जी चेंज हो जाती है उससे. तो इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल, यू नो, इट्स समथिंग हैपनिंग फ्रॉम इनसाइड, राइट, व्हिच द सिस्टम डज इट इटसेल्फ. आपको लग रहा है कि मैं मेंटली इमोशनली ऐसी हूं, आप नहीं हो ऐसे. आप जो खा रहे हो वो आपके इमोशंस बना रहे हैं, जो केमिकल्स आप अंदर डाल रहे हो वही केमिकल्स आपके दिमाग को और दिल को घुमा रहे हैं. ठीक है. Which brings me to my next question. What was your trigger? What made you realize that I need to get onto this fitness journey? यार देखो, एक ट्रिगर नहीं होता कभी भी, यू नो. पीपल हु हैव बीन ऑन द हायर साइड ऑफ द स्केल, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इट, राइट, and there is no one aspect. The aspect of being mobility issues, right, long term health concerns, ठीक है, अपने एस्थेटिक, हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं. अगर मैं चल रहा हूँ, पहाड़ चढ़ रहा हूँ, तो मेरे से अगर नहीं हो रहा 40 साल की उम्र में, 38 साल की उम्र में, तो वो वाले ट्रिगर्स
कोविड हुआ, कोविड के अंदर देख के मेरे को रियलाइज हुआ बे यार आई एम 130 something or 120 something, and if I die right in COVID, then how many people would handle my body? What will happen to, you know, why am I such a, you know, big boj on, you know, others, you know? So plus my own troubles, right? So all these things are triggers, you know, there is no one trigger per se, but हाँ यार अपनी सफरिंग के आगे तो आपको जीतना पड़ेगा, मतलब उसके आगे अब सही बात है. that is the thing, you know. And then I realized I saw so many people doing it, you know. I realized that it's not a rocket science. All you've got to do is, you know, just be committed to it, you know, for some time, and then it automatically compounds and builds further, you know. Eventually आपका कुछ टाइम में ऐसा स्टेज आ जाएगा कि आप उल्टा सीधा खा ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, कि आपका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो डाइट है और जो शेड्यूल है उससे इतना कंट्रोल आता है कि आपको मन ही नहीं करेगा. कभी कभी मन करेगा और उसको दबाना भी नहीं है. मतलब 70, देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू क्विट, देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू लीव, देयर इज नथिंग दैट इज फॉर एवर, यू नो. इसका मतलब ये भी नहीं है कि आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं या पिज्जा नहीं खा रहे हैं. मैं तो यार 2 साल से बाहर ही रहता हूँ, ठीक है ना, और सारी चीजें खाता ही हूँ, ठीक है ना, आउटसाइड फूड पे ही जीता हूँ. तो सारी चीजें एक्सेप्टेबल है एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू आर ईटिंग, as long as you know how it is impacting your emotions, and as long as you know how it is going to impact your next mood swing and next bout of energy and all those things, you know. So that is how personally I have been able to understand it. Thank you. I think I should not monopolize the conversation and maybe let others speak. People speak. For the time being, we'll take to Sangeeta. No, whatever you are asking, that's very relevant, and it's like it's helpful to everyone. So more or less, like our questions are always on the similar side. Yeah. He is not. It leaves us to talk with each other. Yeah, sure. Generally, yeah, so, but I think I did mention few points. उसके अंदर जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा था, उसके अंदर से 3, 4, 5 चीजें थी. Are you still there? You're not visible. Yeah, I'm still here, but I'm trying to hide from the camera because, yeah. All right. Okay. I'm a little camera shy, you know. But it kind of helps in discussing when you are on camera. It is, you know, it's more one-on-one when you are being seen by us. Sure. No, I'll keep going on and off. Don't worry about it. You know, it's a long day. I mean, so you spoke about, you know, in the first few weeks, filling yourself with protein, and you spoke about chicken, paneer, khichdi with dal more. I wonder what is the situation with eating a lot of fruits in that time, the first 2 weeks, and how do fruits do good or bad for us? See, I'd rather avoid them in the initial stages, because even though they are good sugars, but they are still sugars. Okay. They do have fiber, but I'm sorry. And what about dietary fiber? So when you like going on all protein diet, where do you get your fiber from? Veggies. Okay. Dal, veggies. I mean, you can eat palak, all types of veggies, beans, gajar, gobi, patta gobi, mushroom, or any type of vegetable, tomato, except for aloo and high carb, which I told you are not really vegetables, right? So all low sugar items, you know, all these things you can stuff yourself up in. There's no issue at all. Plus all the dals, they have good amount of fiber, you know. So it's not, does not mean, so generally people assume that when we are talking about diet, let's say protein heavy diet, तो हमें protein खाना है, और अगर मैं non vegetarian हूँ तो I'll just stick to eating my meats and I'll just stick to eating my fish, you know. But that's not how it should be. आप एक टाइम पे चिकन खाइए, दूसरे टाइम पे मूंग की छिलके वाली दाल खाइए. मूंग के छिलके वाली दाल में वीगन प्रोटीन है, उसके अंदर फाइबर है, ठीक है ना, तो वो भी आपको प्रोटीन दे रही है, वो भी आपको फाइबर दे रही है. चिकन आपको प्रोटीन दे रहा है, चिकन आपको फैट दे रहा है, यू नो. अगर आप फिश खा रहे हैं तब भी दाल, इतने तरीके की दालें हैं, राजमा है, छोले हैं, you know. So there are so many such grains and not grains but legumes basically, which are high in protein and they have high in fiber content as well, right? Besides that, all kinds of veggies are perfect. I mean, except for alus and, you know, stuff like that. Even alus are perfect if you are not eating them with other carbs like roti and rice. अगर आप आलू को कॉन्शियसली खा रहे हो कि मैश्ड पोटैटो आपने ले लिए हैं 100 ग्राम और साथ में फिश खा रहे हो, तो दैट इज परफेक्ट. अगर आप फ्राइज भी खा रहे हो थोड़ी सी और साथ में चिकन ब्रेस्ट या चिकन का पूरा पीस खा रहे हो,
ठीक है, और साथ में कुछ और कार्ब्स नहीं खा रहे हो, तो आई थिंक दैट इज परफेक्ट, यू नो। तो वो प्रॉब्लम वो आती है कि आलू के साथ हम अब पूरी खाएंगे, ठीक है ना, आलू गोभी की सब्जी है उसके साथ रोटी खाएंगे, आलू मटर के साथ रोटी खाएंगे, सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स, यू नो। तो गाजर मटर के साथ रोटी खा लो भाई, पनीर मटर पनीर के साथ रोटी खा लो, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से उसको सोचना चाहिए, गोभी के साथ खा लो, मतलब बैंगन, एवरीथिंग एल्स इज काइंड ऑफ ओके, यू नो। फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए। मैं फ्रूट्स के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि फ्रूट्स खाने छोड़ दो, बट जो इनिशियल आपका टाइम है उसमें फ्रूट्स को अवॉइड करो, क्योंकि बाद में खा लेना, मतलब यार 2-4 महीने बाद एक बार अपने आप पे कंट्रोल ले लो पहले, ठीक है ना, कि भाई शुगर रोक के कंट्रोल ले लो। और अगर मन करता भी है तो जगह एक एक मैंने उसमें टॉपिक लिखा हुआ था which is about the timing of food, right? So the timing of food is also really important, especially, you know, if you have to consider this aspect of intermittent fasting, right? You guys can research more, just Google for it, right? So the concept is कि कम से कम 18 घंटे का ब्रेक हमें देना होता है खाने के लिए, ठीक है, 2 मील्स के अंदर 18 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे। So that is the concept of intermittent fasting, right? So we have to use that principle and understand where it is coming from, right? So what it means is कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक स्पाइक होता है, हमारी बॉडी उसको प्रोसेस करने के लिए इंसुलिन और केमिकल्स, अब मैं इतना बड़ा मैं डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं हूँ, थोड़ा पढ़ोगे तो आप समझ आ जाएगा, उसको प्रोसेस करने के लिए कुछ रिलीज करती है, ठीक है। तो हमें अपने वो रिलीजेस मिनिमाइज करने होते हैं, समझ रहे हैं, कि जितनी बार हम खाना खा रहे हैं और जितने टाइम के ब्रेक में खाना खा रहे हैं उसका काफी इम्पैक्ट होता है। ये सब फॉर्मूला बनता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने, अब ये अभी का नहीं है, दिस इज नॉट एन एडवाइस फॉर फर्स्ट 2 वीक्स, राइट? फर्स्ट 2 वीक्स इज ऑल अबाउट कीपिंग योरसेल्फ फुल, फीलिंग satiated with good proteins and good fats, right? And trying to cut down your carbs while getting into a stable state, right? But once we are at a different stage, when we are doing, let's say, intermittent fasting, and we are doing a different kind of, we are giving variation to our body, right? So we have to give a lot of variation. For sustained weight loss, there is no one formula that works. Your body needs change. Your body keeps hitting different, you know, resistance levels. उसके बाद कुछ और ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद कुछ और ट्राई करते हैं, तो everything works, but at a different time. You know, so at least for me, this is how it has been. कि कोई भी एक चीज लगा के मैंने, ऐसा नहीं है कि ये करा तो 30 किलो कम हो गया, कुछ करा उससे 2-4 किलो कम हुआ, फिर रेजिस्टेंस हिट हो गई, फिर मैंने कुछ चेंज करा, फिर उससे 2-4 किलो कम हुआ, फिर रेजिस्टेंस हिट हो गई, ठीक है ना। बेसिक प्रिंसिपल में यही रखा है कि कार्ब्स कम रखे हैं, प्रोटीन बहुत हाई रखा है, और फैट्स को मैंने डिमोनाइज नहीं करा है। मक्खन, घी, चीज, अंडे, होल एग्स, पोक, मटन, ठीक है ना, मैंने फुल खाया है, क्योंकि ये चीजें सेटिस्फैक्शन देती हैं, खुशी देती हैं, ठीक है ना। सस्ती चीजें नहीं खानी है आपने। सस्ती कैलोरीज क्या होती है? चावल में सस्ती कैलोरीज होती है, आटे में सस्ती कैलोरीज होती हैं, ब्रेड में सस्ती कैलोरीज होती है, समझ रहे हो? ये सस्ती कैलोरीज, आलू में सस्ती कैलोरीज होती हैं, ये हमारे लिए नहीं है। हम फार्मर्स नहीं है जो खेत में जाके काम कर रहे हैं, वी नीड, you know, those calories. We are making money so that we can eat well. I mean, so we have to put our money on good expensive calories, find good fats, find good proteins, nuts, seeds, vegetables. You know, these are the things we should be eating. That's How why did you start your exercise routine apart from diet? So my exercise routine, it was a little problematic to me because my knees were fucked and I was not able to walk at all. Like even walking 1,000 steps and 2,000 steps would give me immense pain, right? So I was 125, 130 kilos, 5.5, very weak in my core. But you know, एक hack निकला मेरे पास, वो hack मैं share कर सकता हूँ. So basically I discovered, I did some research and I discovered an exercise which is heavy on cardio and has low impact on your knees. In fact, zero impact on your knees, works very heavily on your core, is so much, can be carried in your car and can be done like anywhere, right? So that is, I'm going to share it. It's just a very simple thing called battle ropes, all right?
So Battle ropes, okay. okay, so you can just Yeah. Google it on your screen. Richa can Google for battle ropes, maybe share a link or pictures or whatever. Okay. बैटल ग्रुप्स होती है जो ऐसे ऐसे करके हम एक्सरसाइज करते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम हाँ, पे हाँ। उस पे दिखेगा, राइट? हम्म, तो उसमें बहुत सिंपल मोशन है कि हम बस खड़े हैं और ऐसे हम खड़े होकर ये करते हैं, ठीक है? Okay. उससे क्या होता है, जब हम ये कर रहे हैं तो हमारी पूरी बॉडी यहाँ से मूव करती है अंदर से, ठीक है? अच्छा। सारे जो हमारे हम्म। कोर के छोटे छोटे मसल्स हैं जो हम बैठे बैठे यूज ही नहीं कर पाते हैं, खड़े होते हैं, walk करते हैं तो हमारी लेग के कुछ मसल्स फिर भी यूज हो जाते हैं, मगर हमारे जो अपर बॉडी के मसल्स हैं ये बेचारे बहुत ज्यादा अनयूज होते हैं। तो जब मैंने उसको बैटल करना शुरू करा तो मेरी सारी बॉडी मूव होनी शुरू हुई, सारा ऊपर से इम्पैक्ट आना शुरू हुआ, ठीक है? तो काफी काफी ज्यादा वो आपकी बॉडी के अंदर से एनर्जी चूसती है, ठीक है? तो उसको करने की भी स्ट्रैटेजी है, मतलब अब आगे वो डिस्कस कर सकते हैं। जैसे पहले मैं 1 मिनट करके अपना मेटाबॉलिज्म और कार्डियोवैस्कुलर लेवल बहुत ऊपर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हाथ से करते रहो उसको धीरे धीरे, तो आपका वो हार्ट रेट चढ़ता रहता है, you know, like you do 10 reps from one hand, then 10 reps from one hand, and you continue doing it for 15-20 minutes, you know. So that gives you a more cardiovascular burn than running and lower impact. And the good part is you don't even need a treadmill. You can do it. Yeah, you can just buy a rope and just put it around a tree in your door or, you know, anywhere, you know, and just go about it, you know. Okay. हाँ, तो वो मेरा पहला लेवल था जो मैंने यूज करना शुरू करा। उससे जो इनिशियल 5-10 किलो मेरा वेट कम होना शुरू हुआ, प्लस द डाइट, दैट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट? फिर मैंने उस कॉन्फिडेंस के, जब वहां से वेट मेरा गिरना शुरू हुआ तो मैंने थोड़े थोड़े स्टेप्स भी बढ़ाने शुरू करे। जैसे मैं डेली ट्रैक करता था कि यार अभी 2000 स्टेप करे हैं, चलो 2000 स्टेप में ही मेरी फट गई है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आज 2500 कर लिए। मगर फिर मैंने क्या करा, अच्छा मैं 2-2500 स्टेप कर लेता हूँ, तो 2000 सुबेरे, फिर 2000, 1 घंटा ब्रेक ले लो, चाय पी लो, 2 ब्रेड खा लो, फिर 2000 कर लो, ठीक है ना? आपके पूरे दिन में 4 हो गए, ठीक है, तो आपका लेवल तो अप हो गया, राइट? तो जरूरी नहीं है कि इकट्ठे करने, ब्रेक लो, चिल करो, एक आधा घर में बैठो, गाना सुनो, यू नो, हैव समथिंग टू ईट, यू नो, देन डू इट अगेन। और मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज इन अ वेरी हॉरिबल पोजीशन, सो आई यूज्ड टू, मेरे नीज बहुत खराब थे, तो लिटरली आई हैड टू invoke in the principles of self healing and self love, and I used to massage them, and I used to talk to them, and I used to tell them that, baby, I love you, fucking get well soon, you know. And they got well soon, you know. Right. So that was the physical thingy. मतलब फिर walk अपने आप बढ़नी शुरू हुई धीरे धीरे धीरे. Initially, just doing 5,000 steps would break my body and, you know, would make me feel really weak and, you know, whatever. But वहाँ से मैंने protein का levels अपना ठीक रखा हुआ है. So another thing that happens to you is once you are maintaining your protein levels, right? तो आपकी जब body. Are you taking any kind of protein supplement also? No, I'm not. No, I'm not. Any kind of whey or plant-based or whatever? कुछ नहीं. Nothing. Zero. Oh, fantastic. That's तो, great. हाँ, तो सब डाइटरी चल रहा है. तो बेसिकली once you are maintaining your protein levels, right? Once you have, you are ensuring कि अगर जैसे मेरा वेट 120 किलो 130 किलो था, तो मैं रोज का 100 ग्राम 125 ग्राम प्रोटीन खाने की कोशिश करता था. तो उसके अब जब आप इतना प्रोटीन लेवल मेंटेन करते हो, तो जो फिजिकली आप बॉडी में वर्कआउट कर भी रहे हो और पेन हो रहा है, ठीक है, जो आपको निकल रहा है, तो आपको अंदर से, अब चाहे उसको प्लेसिबो बोल लो, चाहे उसको अपनी कन्विक्शन बोल लो, चाहे उसको एफर्ट की पावर बोल लो, चाहे उसको एक्चुअल साइंस बोल लो, तो आपको ये अंदर से विश्वास होता है कि यार मैंने प्रोटीन तो खाया हुआ है, तो बॉडी तो कल ठीक हो जाएगी. ठीक है, ये तो है, बॉडी तो मैं प्रोटीन खा ही रहा हूँ, ये तो रिकवर हो रही है, मैं तो स्ट्रांग हो रहा हूँ. ठीक है ना? सो अगर आप डाइट सही नहीं रख रहे हो तो आपको मेंटल वाली वो नहीं आएगी. डाइट ठीक है, वहां से थोड़ा वर्कआउट है, तो आपको हमेशा ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मैंने अच्छा सा खाना खाया हुआ है, अगर मेरे को थोड़ा स्ट्रेस आ भी गया बॉडी में, तो इट्स जस्ट एडिंग टू माय स्ट्रेंथ एंड एडिंग टू माय, you know, agility or mobility and all those things, right? So that is why when we started this call, the first thing I did was to get your protein and fat right for the first couple of weeks, right? जब वो सही हो जाएंगे तो आपका काफी कुछ आगे ठीक होना शुरू हो जाता है. जनरली स्पीकिंग मेरे साथ ऐसा हुआ था. आई एम श्योर एवरीबॉडी इज डिफरेंट एक्सपीरियंस, यू नो, एंड अ डिफरेंट.
No, but keeping, I mean, oneself pacified in terms of food plus, movement is very important. अगर Yeah. वो नहीं होता तो फिर वो मन में भी satisfaction नहीं होता कि अगले दिन दोबारा वही करना पड़ेगा. हाँ, तो और उसमें क्या है कि मेरा actually, I lost 26 kgs, but then in between there have been lots of things in the family. My parents died and this and that. I'm so Then sorry. lockdown happened. So initially when everything was closed, I lost 8 kgs. And the moment Zomato opened, I regained 16 kgs. It's Yeah, like, ये- it's not just Zomato. I'm not blaming Zomato. But then वो आ तो गया ही है, अब उसको हटाना पड़ेगा, वरना फिर से वही होता है ना, आपका फिजिकल स्ट्रेस तो बढ़ना ही लगता है. बॉडी तो बॉडी है, तो उसकी लिमिटेशन में फिर कुछ ना कुछ, फिर थायराइड भी बढ़ गया बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड ऑल. नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट बैक, बट द थिंग इज लाइक अभी यूनिवर्सिटी में जैसे मैं हूँ, तो रूटीन इतना ज्यादा है वायर है कि कुछ समझ ही नहीं आता कि कोई स्टडी चीज हो ही नहीं पा रही है. तो वो स्टडी नहीं होता तो फूड भी जरूर गड़बड़ होता है, क्योंकि वो बिकॉज यू वांट समथिंग टू मेक यू हैप्पी एंड देन यू टेंड टू जस्ट बिंज कि कुछ खा लिया, चलो रात को देर से आ रहे हैं, कुछ खा लिया. हाँ, नहीं, I So that understand itself that. is becoming a like No major, problem. major problem. But you are a great inspiration. Fantastic. I also just ran away from here from Delhi for some time. I don't know if just, but then it's not possible. Then I'll have to make up for whatever I have in hand. थोड़ा इस बात का तो फर्क पड़ता है कि मैं अपनी मम्मी की कंफर्ट में नहीं हूँ, हाँ. the ability to handle your own kitchen. और देखो वो जो आप मेरे को रात को क्रेविंग्स वगैरह वाली बात बोल रहे हो, वो भी क्या है, थोड़ा सा सेंसिबली उसको करना है कि यार चीजें सही रखो अपने पास खाने की. जैसे जंक रखता ही नहीं कुछ, ठीक है ना. नहीं, पर जैसे आप उसमें बहुत सारे वीडियोस डाला है जिसमें आप सैंडविचेस बना रहे हैं या पिज्जा बना रहे हैं, तो दो जो रियली रियली वेरी इंटरेस्टिंग कि आप उसको अच्छे से भी बना सकते हैं. कोई मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को. यार देखो मैं बताता हूँ आपको, चीज है ना प्रोसेस नहीं है. इवन प्रोसेस चीज भी बहुत बुरा नहीं है, बट प्रोसेसिंग एक लेवल होता है काटने का, प्रोसेसिंग छोड़ दो. आप अच्छी क्वालिटी का चीज अगर उठाते हो, कोई भी कंपनी का ले लो जो लेस प्रोसेस्ड है या फार्म फ्रेश है, ठीक है, कोई भी चीज एक्सेप्ट फॉर फेटा में भी, फेटा के अंदर भी 12 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 grams of cheese, right? And all other cheeses would have mostly over 20 grams of protein per 100 grams. That makes it really good for you. So जब चीज इतना टेस्टी है और उसके ऊपर चिकन भी हमें पता है अच्छा है, वेजीज भी पता है हमें अच्छे हैं, होल व्हीट फ्लावर हम ले सकते हैं, तो पिज्जा खाने में क्या प्रॉब्लम है? ऑलिव ऑयल अच्छा है, टमाटर अच्छा है. ये तो जब हम प्रोसेस्ड खाते हैं, फास्ट फूड वालों का घटिया सामान लेके खाते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं है कि फैट कौन सा है, फ्लावर कौन सा है, चीज के नाम पे पता नहीं उन्हें क्या व्हाइट सॉस लगा रखी होती है, ठीक है ना. सो दैट इज द हार्मफुल पार्ट. राइट. अपने को अगर पता है कि हम किस क्वालिटी का इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, किस प्रोसेसिंग लेवल का इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, किस मैक्रो लेवल का इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, तो कुछ भी खा सकते हो यार. आप यकीन करोगे, मैंने बहुत सारा वेट अभी रिसेंटली, मैं यहाँ वीर में हूँ और पिछले 2 महीने मैंने हॉस्टल में निकाले हैं, और चिकन का पराठा भर के एकदम चिकन, उसके ऊपर देसी घी में बना होता है वो, उसके ऊपर मक्खन लगा के, साथ में फुल दही, अचार, चटनी और 2-3 अंडों का ऑमलेट बटर में बना हुआ, ठीक है. दिस इज व्हाट आई हैव. और अगर कोई राजमा मिल गए, छोले मिल गए, वो भी फुल कटोरी भर के. by this time you have earned it. नहीं, अभी आपने अर्न कर लिया, मतलब अभी गोल तक पहुंचना है. It sounds like something. It sounds yummy. It sounds guilty, but it is not at all. It is all calculated in your macros. It is all part of my food timing. It has got enough protein. It has got enough good fat. It has got enough carb to power me through. It's just using it intelligently. मेरे को दिन में जीने के लिए 2000 कैलोरी तो चाहिए ही चाहिए यार. किसी का बाप नहीं हो सकता. अब उनको मैं स्मार्टली खा लूं, गिल्ट इंड्यूस करके खा लूं, या तमीज से स्ट्रेटेजिकली खा लूं, ठीक है ना.
एक स्टेज ऐसा था कि हर बार खाने से पहले मुझे गिल्ट होता था, यार खाना, अबे यार खाना, यार खाना, तो मैं तो मोटा होता जा रहा हूँ, फिर खाने का, अबे मैं तो मोटा हूँ फिर खाना, अबे मैं तो मोटा हूँ फिर खाना, ये क्या बकवास है। फिर मेरे को रियलाइज हुआ, अबे पागल, खाना तो खाना ही पड़ता है जीने के लिए, उसके बिना Right. जिंदगी है ही नहीं, तो व्हाई आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट इट। A man, a girl, a man, a human has to eat 2-3 meals in a day to have a living. जब मेरे को रोज के 2-3 अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने आप को खुश करने की, तो मैं सैड क्यों हूं? सही बात। 2-3 बार तो रोज की है ना, और भाई पूरी लाइफ है, हम्म 2 बार 3 बार मेरे को अपनी हैप्पीनेस मिल रही है, तो यार बहुत बड़ी हम्म बात है। मैं क्यों इतना ग्रीडी फील कर रहा हूँ, क्यों इतना वो फील कर रहा हूँ, 2 बार 3 बार you're एक reducing you're reducing weight also for your happiness ना, कि मैं जो भी है अभी मेरे कर पास सकते हो बॉडी यार, में उससे मजबूरी में खुश कुछ नहीं रहो। होता। हाँ मजबूरी में 2-4-5 किलो कम कर लोगे, वापस आ जाएगा, सस्टेन नहीं कर पाओगे। फुल ब्रूट फोर्स हाँ लगा के आप कर लोगे हम्म भी हो जाएगा, मगर वो मेरे को नहीं लगता कि सस्टेनेबल होगा। हाँ नहीं वो तो है, वो तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, एक सेकंड गाइस, मेरे को जरा ना रिचा का मैसेज आ रहा है कि मीटिंग एंड होने हाँ वाली है। मेरे को प्लान भी अनम्यूट करना हो, उसको मैं होस्ट बना रहा हूँ, उससे क्या होगा देखता हूँ। मैं पीछे वाली स्क्रीन पे एक्चुअली उसको अपग्रेड करने की भी कोशिश कर रहा था, बट अच्छा हाँ, क्योंकि वो ये जूम का ना 40 मिनट में एंड हो जाता है, इसने सवाल इतने सारे ओके पूछ लिए। 1 मिनट गाइस, हाँ, आई एम जस्ट गोना पुट नो माय प्रॉब्लम। कैमरा। आप आपस में बात यस सर। कर लो यार प्लीज थोड़ी सी। ये आपको हम सबको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, तभी बात करना थोड़ा आसान रहेगा। अनुजा, हाय रिचा, जरा अखिलेश इंट्रोडक्शन जी। करा लो यार, आई विल हैंडल अदर थिंग्स। हाय अखिलेश जी, आई एम संगीता। I am Akhilesh. This is my wife Ankita. Hi, हाय Sangeeta. How are अंकिता you? जी। ऑल वेल थैंक यू। आप क्या करते हैं यूनिवर्सिटी में, संगीता जी? मैं पढ़ाती हूँ। Oh wow, क्या पढ़ाती हैं आप? मैं लिटरेचर पढ़ाती हूँ, इंग्लिश Very लिटरेचर। nice. wow. Very nice. थैंक यू। We are both very interested in literature, so you're a good find for us. फैंटास्टिक। So Which nice to university are you at? I'm in DU. I'm for Okay. undergraduate classes I take it in PGDAV, but Okay. otherwise I take PG as well. Okay, Okay. That's very very nice. nice. Very nice. Thank you. Thank you so much. We have not only the journey of trying to lose weight, but also finding a person who is deeply interested in literature, or at least teaches literature, is a great find for us. I'm the lucky one then. No, we Thank all you. are lucky, and Yeah. we would. When if the gentleman is listening to us, then thank you to him too for Yes, helping us of course, of interact. course. Even otherwise, earlier also when he had started Eatlo, I had met him then, and it at that time also that was a fantastic thing to do. All foodies came together, and they were having a nice time and all that. So I'm sure this is going to be a new chapter with Eatlo, where everybody is eating healthy and finding new things and I don't think everything. it should. I don't think it should be restricted to uh, just losing weight, eating healthy. I think because uh, people with our kind of weight, Yeah, I think I don't know if there is a study out there which says how do we interact with each other. In the sense, how do we come across with each other with who have similar health issues, maybe being overweight, yeah, issues, have medical issues because of being overweight, or yeah. simpler issues. Say, I want to buy some clothes and I don't find my size of clothing. Yes, of course. It's like having a community is always Yes, good because then you have a support system, correct. and it always helps. Support system, helping each other with new information regarding things. So it's a Yeah, lot of, and then for once at least you're in a community of people where if you have gone through that of being judged by your size or your weight, at least yeah, here you expect that you are amongst your yeah. peers, and they would understand your own issues better. And you get to know that it's not something which is permanent. It is like it is the body. It may gain weight, it may lose weight, by and by. So life is a long Yes. process. तो उसमें तो Also, ये होता ही रहेगा. it is to understand that behind that layer of mass that we have, we are still human beings.
We are simple human Absolutely. beings and emotional people who hurt or feel happy, and to be able to feel all of those feelings together in the sort in a sense of community. Absolutely. Absolutely. So somebody can come and tell me who's absolutely fit that, hey, I understand the problems that you face, but somebody who comes and has similar problems would maybe be able to understand my plight better, because that person also goes through that. Mm. And the journey, of holding on to someone else who's equally weak as you and becoming stronger together. Absolutely true. This is the thing which we really missed during lockdown. Like in so many ways, we really came together and we had built bonds through Zoom and everything. But still, now we know that having a community is very, very important, because otherwise it becomes really difficult to sail through. I agree. That's a really good suggestion, Akhilesh. हाँ मतलब मैं इसको सोचता हूँ आपका आइडिया जो है कि सपोर्ट सिस्टम जो है, क्योंकि मैंने क्या डिस्कवर करा है कि ये जो मोटिवेशन वाला एस्पेक्ट है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा कारगर है. It's very important, it's the reason I'm posting so much on social media, honestly speaking, when people are liking, commenting and saying nice things about it, it gets me going, so that is I mean मेरी मोटिवेशन वहां से आ रही है. मेरे को दोस्त मिलते हैं, वो कह रहे हैं यार अच्छा है, ये है वो है. तो जो भी मोटिवेशन जहां से भी मिलती है वो बहुत ही ज्यादा चार्ज अप करने के लिए, आपको आगे जाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है. So more than anything else, I think, yes, we need to motivate each other, we need to support each other, we need to be there for each other. है ना? तो वो aspect, Akhilesh ji, I have been considering as a community admin who has a little experience of creating and managing communities. I have been trying to figure out a nice structure in my head. It's easy for me to create a community. However, it can go in any direction. But I'm thinking for a long-term thingy where information and knowledge can be shared and flow in a structured way and can help us as well as people who would need that in future. So I'm thinking about it. I've been evaluating it. I'm evaluating platforms. I'm evaluating systems. So I'll keep you guys updated on that. Yeah. In the meantime, there are amazing things that we can help each other with. And sometimes it might be voluntary. Sometimes it may be somebody might ask due to a problem that they're facing. So I will tell you a little bit about me. I'm hoping that other people who are not interacting right now are still listening to us. I'll make I'm them 160 kg. I'll make I'm them 160 kg. You are how and much? I'm 5 feet 8 inches, 160 kg. And what is your height, bro? 5 feet 8 inches, just 3 inches taller than you. Wow. And when you were talking about knee pain, so Yeah. I'm in Bombay. I've started walking, and I wanted a target of 5,000 steps, but I'm not able to do that. Maybe 4,500. But the next day, my knee pain is tremendous. I can understand, bro. I've been through that. Okay. And so now I am at 160. So maybe I am the king of all fat people over here right now. That's how I would look at it. So nobody else is saying it. So I am saying it that maybe I have the most amount of weight on me. So when I have to wear my shoes, okay, when I have to put on my shoes, I find it hard to bend down and put my shoes on. So I found online on IKEA a shoe horn which is to 4 inches high, in which I can wear my shoe. So if some friend of mine who's over here who faces similar problems, first of all, I would also love to see myself lose weight and others lose weight. But at least if you're not losing weight, I know that there is a shoe horn out there which helps people to wear shoes. Right. Even that helps. If somebody had told me 10 years earlier, it would have helped me so much more than struggle how to put my shoes on. So I think the journey is not, at least this is how I feel. And I apologize in case by saying I am trying to structure you, because that is not what I want to do. I'm only trying to say that this journey is a very tough journey when you've got so much weight on. And while you're trying to fight to lose weight, you still have to live. So when you teach us that eat this and you will satiate your hunger, and this will make you feel better, and you will move to a new aspect of things. So that is one aspect. But then there is a lifestyle aspect to it also. For example, I want to buy beautiful clothes. Okay. So where do I go? If I ask you, where will I get a size 8? Nobody will tell me. I go searching online.
somebody somewhere is selling in the US a big broad size, which if I buy that shirt, उसकी आस्तीन मेरे लिए change ज़्यादा लंबी लगेगी. So when we come together as a community, it is to answer all the unasked questions also at times. I get your point. You know, to hold each other's hands in tough times and keep on holding them, so that when people are differing, not to say bad things to them, but somehow to encourage them with love. Ki aao, you know, join us. True. Feel That's with very us because we feel for you. Yeah, I get your point. I get your point. I feel you, my friend. I feel you. You know, I'm really emotional right now. And what Actually, are you each doing? moment. I'm sorry. Yes, you were saying something. I'm asking him. What are you each- doing about? So currently, I've been through the process of intermittent fasting. During lockdown, I found intermittent fasting to being very successful. But I must say, whatever I was doing was not correct, because I could hit 36 hours of intermittent fasting. I wasn't falling apart. I was not having any issues. I am a diabetic, yet I was all okay, but I wasn't losing weight. So I lost faith in it at some point of time. Now, currently, I and Ankita have joined together as life partners only about a year and a half back. We met each other late in life, and so we've joined together. We now are married and live together. So the process is that we went recently to a metabolic clinic here in Mumbai, and they said that we'll run a bunch of tests, but we want you to change your lifestyle. Basically, what you were saying, except that they were charging us and you're not charging us. You being friends with us, they were being doctors to us. Right. So, okay. So it gives me some confidence that, you know, I'm on the right track, because I have not consulted any doctor for this. It's mostly self-taught information through internet. So they're on the right track, right? So I was asking Akhilesh, what are you doing about your knees? What are you doing when you are not able to do more than 4,500 steps? I just don't walk that the next day, try to rest it out, then go for another walk. That is the only thing that I can figure out right now. Okay. I wish I could, you know, I am in a service apartment. We're in the process of getting our own home in place. We moved to Bombay about 3.5 months back. So our own home is not in place, but we're in a very comfortable service apartment. So one of the other issues that I face is when I'm sitting on the sofa that I'm sitting on as I'm talking to all of you, my friends, I have a difficult time getting up. Right. I can relate. I can relate. And so you know what? The thing is that I blame anything and everything on having a bad knee or bad knees at times. I don't like taking medication, so I keep away because I worry that it might cause some other difficulty. So I keep away from medication, but try to be careful with my legs. That's about all that I can do. Maybe you have a suggestion. I'm all open to listening to what. That's what I was coming to, bro. That's what I was mentioning. Number one is self-love. All right. So take self-love literally. Love your knees. Fucking pamper them. Caress them. Right? Take them as your babies. उनके ऊपर अच्छी अच्छी चीजों की मसाज करो. ठीक है ना? इज्जत करो उनके ऊपर बढ़िया बढ़िया बाम लगाओ. दर्द होता है, एक एक उंगल से फील करो मसल को पीछे अपने कि कहाँ पे मुझे वॉक के बाद दर्द हो रहा है, उसको मसलो प्यार से. ठीक है ना? कोई बात नहीं मेरे बच्चे, दर्द हो रहा है तो कल ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं. ठीक है? मतलब पर्सनली सर, इट माइट साउंड स्टूपिड टू यू, बट दैट्स व्हाट आई डिड. उसके बाद उसके ऊपर मैं क्रेप बैंडेज बांधता था. ठीक है? और उसको रेस्ट करने देता था. और जब मेरे को उसमें रिलैक्सेशन मिलती थी तो मैं उसके बाद ठस होके नहीं बैठ जाता था. फिर 1000-2000 स्टेप को और मूव करो. ठीक है ना? कि उसको उस समय मोबिलिटी दो कि यार उसको आदत हो थोड़ा सा पेन में रिलैक्स करके चलने की. ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल ही हमने कर दिया. ज्यादा पुश नहीं करना है, बट 10-20% उसको और पुश करो. I think Shashan's longing. No, he's out. Brilliant son behind him. It's when he was talking about all the food and you were talking about the pizza and stuff, I was getting hungry. I was going to complain, boss, I just had breakfast a little while back. You guys are causing me to feel hungry again. Have whatever you want to have. Actually, like when I lost 26 kgs, but then my weight was slightly on the lower side. But even then, I never stopped eating fruits. Or maybe since you're diabetic, so maybe a little attention. It's only in these last few years where I've discovered my love for fruits. Earlier on, Shashank, your mic is off. Shashank, unmute yourself.
Okay, guys. Everybody is Yeah. recording. Yes, now we can Hey, hear you. welcome back. Okay. Yeah. तो हाँ प्लीज आप कुछ कह रही थी संगीता जी, फ्रूट्स के बारे में कह रही थी. He was saying, Akleshi was saying that he's feeling hungry again after listening to our pizza and burger and sandwiches talk. So you can always have some munchies around like cucumber and all that with No, nice, I was actually trying nice to, dip. you know, If you can, I am not really hungry. I was just trying to bug him a little bit that, hey, you're making me hungry. And this is Yeah. a discussion amongst, so, you know, just imagine for a minute that we are not all fat people, we are all alcoholics. And we're sitting in a circle of Alcoholics Anonymous. And I'm only, by the way, I must tell you that I don't drink alcohol, just in case you guys figure that, okay, mota bhi aur piyakkad bhi, aisa nahi hai. So this मैं हूँ मैं और भी बहुत कुछ हूँ बाय द वे, और सब कुछ करते हुए भी सब कुछ ठीक रहता है. मतलब नो नीड टू डिनाइज एनीथिंग. So what I meant to say was, I was just concocting a joke over here. That was that just imagine that we are a group of alcoholics sitting together in an Alcoholics Anonymous meeting, and I say, hey, I feel like having a drink. So it's sacrilege sometimes, you know, just to bother other people. कि आप मुझे बता रहे हो कि मैं ये बना रहा हूँ और वो बना रहा हूँ, तो मुझे भूख लग रही थी. बोला शशांक जी मुझे बताओ किधर बिलिंग में हो, मैं गाड़ी पकड़ के पहुंच रहा हूँ आपके पास, बनाते रहो मैं पहुंच. नहीं सर, मेरे को बनाने की जरूरत भी नहीं है. मैं यहाँ पे आपको बर्गर खिलाऊंगा, उसको खिला के भी आपको पतला कर दूंगा. आप टेंशन ना लो, ठीक है ना. बस उसको टेंशन, अगर आपको लग रहा है कि मैं टेंशन ले रहा हूँ तो वो मैं ले ही नहीं रहा. चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है. ओके. that's the beginning of टेंशन मत लो, वो सबसे बड़ी बिगनिंग है, क्योंकि स्ट्रेस नहीं है तो बाकी सब भी चीजें ठीक होती रहेंगी. हाँ, स्ट्रेस वैसे ही नहीं, स्ट्रेस सारा ले रखा है ना. सही बात. What did you do to old clothes, शशांक? I'm sorry? पुराने कपड़ों का क्या किया? पता नहीं यार, पड़े हैं अभी तंबू सारे. They're all there. So yeah, that's another thing that, you know, कपड़े वपड़े मैं ज्यादा खरीदता नहीं हूँ अब. मतलब अभी ज्यादा खरीदे भी नहीं है 2-3 साल से. बट अब वो साइज के लिए लेने पड़ते हैं बीच में, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर कुछ करो, मतलब ऐसे ही चलेगा. But I have different cartons which have small size, medium size, large size, XL size, double XL size. Yeah. So I keep, you know, getting stuff from different boxes every time. Anyhow, Acha Sangeeta, how long did you take to lose that 26 kgs? Around 3 months, 3.5. So that's where you went wrong, Sangeeta. That's why it all came back. It stayed like that for a long time. Like I had this thyroid issue initially. Okay. And then I had gone to a doctor at AIIMS and they had given me this pill, कौन सा होता है ये, thyroxine. Okay. तो उन्होंने कहा खाते रहो, क्या है प्रॉब्लम. तो वो खाते रहे तो वो ठीक, मतलब बाकी भी एक्सरसाइज करती रही. I was into dancing and all that, तो लूज हो गया सारा वेट. और पर बीच में, like I had been going to Srifort also, I was playing games, this and that. But in between, my brother expired, then my father expired, then my mom expired, like within a span of very small time. So I think that was the thing which took toll on me. And when my mom expired in 2012, in 2016, sorry, 2012, it was my father. So I just stopped taking medicine, and it just went off my mind कि मेरे को दवाई लेना भी है. So I was doing my work and all. I thought ठीक हो जाएगा, क्या है इसमें, ठीक तो हुई. But then it started coming back again, and it really came back with a bang. I mean, with lots of stuff. So in between, like I was not working out. I was like I was going crazy with the routine also. फूड रूटीन, तो वो सारा जो है वो पाइल अप हो गया. फिर ये लॉकडाउन हो गया. सो इन बिटवीन आई लॉस्ट 8, बट देन फूड, और फिर आप पूरे टाइम अगर इस पे ही हैं. नहीं, इसका देखो, मेरे को लगता है जो आपने पहला अपने लिए एग्जांपल सेट करा है ना कि 26 किलो आपने 3-3.5 महीने में लूज कर लिया. आई थिंक दैट इज समथिंग यू नीड टू ब्रेन वॉश फ्रॉम योर हेड, एंड more than that, you know, make in your mind that I only need to lose 1 kg a month. Instead of trying to, you know, put all the pressure on yourself कि 3 महीने के अंदर मैं तो नॉर्मल हो जाऊंगी.
देखो मैंने जितनी भी रिसर्च करी थी और जितनी भी स्टडीज करी हैं, जितने भी लोगों से बात करा है, जो भी ये 2-3-4 महीने के अंदर ऐसा बल्क वेट लूज करते हैं, कोई भी नॉर्मल नहीं मिला मेरे को, एक्सेप्ट फॉर मे बी मूवी स्टार या अंबानी का बेटा जो होगा उसने कर लिया होगा, उसके पास बहुत चीजें हैं। बट मेरे को रियल लाइफ में इंटरनेट पे कहीं पे भी किसी भी कोच की, किसी भी डॉक्टर की, किसी भी समझदार आदमी की सजेशन 1 किलो से 2 किलो पर मंथ से ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप नहीं उसको नहीं वो target तो करो। है। तो आप जब उसको टारगेट करते हो तो व्हाट दैट डज इज इट हेल्प्स यू, इट इंटीग्रेट्स दोस चेंजेस इनटू योर लाइफस्टाइल rather than making you do fad things कि भाई मैं अभी क्विक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह जब आप 1 से 1.5 किलो हर महीने का टारगेट करके चलोगे, तो जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो आपको इंटीग्रेट करने का अपनी लाइफ में टाइम मिलता है, आपको हैबिट फॉर्म करने का टाइम मिलता है, और उनके साथ सस्टेन करने का टाइम मिलता है। आज की तारीख के अंदर अभी 2 साल हुए हैं मेरे को इस जर्नी के ऊपर, और जैसे मैं एग्स खाता हूँ, ठीक है, अब मेरे को 4 से 6 अंडे खाने की आदत पड़ गई है रोज, क्योंकि प्रोटीन चाहिए, वर्कआउट करता हूँ, वॉक करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, ठीक है, और 100 ग्राम प्रोटीन कहाँ से लाऊंगा मैं, वरना अंडे नहीं खाऊंगा तो, ठीक है। तो अब जिस दिन मैं अंडे ना खाऊं उस दिन मुझे ठस महसूस होता है, अच्छा, क्योंकि बॉडी को वैसी आदत हो गई है, राइट। आदत हो गई है, तो हाँ। एनीथिंग, इफ आई हैव टू डू एनीथिंग इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट थिंग आई विल डू, जैसे आज मेरे को कॉल करनी थी ये वाली, तो सुबेरे मैंने सबसे पहले, वैसे मैं जनरली ब्रेकफास्ट नहीं भी करता, कई बार स्किप कर देता हूँ, इंटरमिटेंट ट्राई करता हूँ, बट मैंने सबसे पहले भैया 4 अंडे प्लस 2 एग वाइट का ऑमलेट खाया है सुबेरे, ठीक है ना, कि यार मेरे बॉडी के अंदर अच्छी एनर्जी, प्रोटीन, फैट सब होना चाहिए, सो दैट माई ब्रेन वर्क्स फाइन एंड माई आई डोंट फील इमोशनल स्पाइक्स, मूड खराब ना हो मेरा, ठीक है ना। तो यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज। तो अब मेरे को आदत हो गई है कि अगर मैं नहीं अच्छी चीज खाऊंगा तो मेरी बॉडी को कमजोर फील होने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ 2 years, 2.5 years, they have become part of my system. It's not something कि जो मेरे से कोई छीन के ले जाएगा, कि आज मेरी जिंदगी में कोई इंक्रीमेंट इमरजेंसी हुई और मेरी हैबिट्स एक दिन में चेंज नहीं हो जाएंगी अब, क्योंकि मैंने वो 2 महीने में काम नहीं करा है ना, इसको 2 साल 3 साल मैंने लगाए हैं, राइट। सो दीज थिंग्स आर नाउ बिल्ट इन माय हैबिट, अब मेरे शरीर को उस चीज की आदत हो गई है। यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, साइकोलॉजिकली प्लस हैबिचुअली यू हैव टू यू नो रिटेन सर्टेन थिंग्स, जो वो थोड़ा थोड़ा रहता है, वो ही 10,000 डेवलप स्टेप, करने का जरूरत है। 10,000 स्टेप तो मतलब जैसे मैं 12-13 हजार स्टेप का मैं एवरेज का टारगेट करता हूँ, इफ आई टारगेट व्हाट ईयरली एवरेज। मैंने देखा आपका गूगल का, आप डालते रहते हो ना उसका, गूगल फिट। एग्जैक्टली, तो अभी मैं डालूंगा तो 13-14 हजार इस साल का डेटा का आपको एवरेज मिलेगा, ठीक है। तो जब आप हैबिट, क्योंकि ये एक दिन में नहीं हुआ ना, ये 2 साल लगे हैं यहाँ तक आने में, मगर वो अब हैबिट बन गई है कि अब मेरे को मेरे शेड्यूल में कहीं ना कहीं फिट हो गया है, मुझे पता है मेरे को कैसे करने हैं, कहाँ करने हैं, किस तरीके से पूरे होंगे, ठीक है ना, क्या हैक्स हैं, ठीक है, क्या रात को 11:45 क्या मैं, कई बार तो ऐसा भी होता है कि रात को 11:30 11:45 बज रहे हैं और मैं नशे वशे करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और स्टेप्स पूरे नहीं हो रखे, तो भैया बाहर निकल के फटाफट कॉरिडोर पे अपना जल्दी करो यार, टारगेट नहीं मिस होना चाहिए, मजा नहीं आएगा वरना, क्योंकि you know you give yourself that thing, you know, so every day I'm meeting that target, right? I don't want to miss on that now, right? Why would I want to break my record, right? और तो बहुत सारे गेमिफाई कर दिया मैंने उसको अपने लिए, स्टेप्स को, ठीक है, कि यार ये गेम है मेरी, इस गेम में मैं हार तो सकता ही नहीं, ठीक है ना, एटलीस्ट कोशिश। I call it psychological fooling yourself, like in a positive way, because at that time I used to like love having pizzas and all. Then what I decided was I'll have all the toppings, I'll make it at home. I'll put everything, but I won't put the base. And it really tasted very good because I felt it was pizza. I was having everything in that. And I really enjoyed it. I mean, the base was missing, that, forget it. That was not so important. But then cheese was there, all the veggies were there. I'm a vegetarian, hardcore vegetarian. So I enjoyed that. Little bit of ketchup, mustard sauce and everything. तो फ्लेवर्स की यार, मसाले, सारे मसाले, इतनी सारी सॉसेस, इतनी सारी चटनियां, ये सारी चीजें गिल्ट फ्री हैं यार, मतलब फ्लेवर्स की तो बाहर है हमारे पास,
ठीक है ना, तो उनको ढंग से यूज करो, मतलब हर चीज सिर्फ कार्ब से ही तो बचना है थोड़े से। अच्छा, और घटिया फैट से बचना होता है। घटिया फैट में वही प्रोसेस्ड रिफाइंड ऑयल हो गया खासकर ना, इससे बचो भाई, कमर्शियल ऑयल से बचो, ठीक है ना। अच्छे तेल खाओ, अच्छे घी खाओ, नेचुरल अकरिंग फैट। नेचुरल अकरिंग फैट समझते हो आप लोग, कि जो फैट जो अंडे के योक में है वो नेचुरल अकरिंग फैट है, ठीक है ना। जो फैट आपके एवोकाडो में है वो नेचुरल अकरिंग फैट है। जो फैट आपको फुल क्रीम दूध से मिल रहा है वो नेचुरल अकरिंग फैट है। जो बादाम से मिल रहा है वो नेचुरल अकरिंग फैट है, ठीक है ना। तो ये नेचुरल अकरिंग फैट, होल फैट को आप बिंदास खा सकते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है। कोशिश करके यही सब खाओ टू गेट योर कैलोरी काउंट अप और व्हाटएवर, और इंटरेस्टिंगली इन सब चीजों में प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये तो है ना। चलिए गाइस, मैं तो चलता तो I was रहता lacking that motivation, but after speaking to you, I'm feeling so good. It's like अच्छा लगता है, फिर लगता है कि हाँ जो भी कर रहे हैं ठीक हो रहा है, स्लो हो रहा है कोई बात नहीं। स्लो तो यार, और क्या, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और यहाँ तो रेस भी नहीं जीतनी है यार, किससे रेस जीतनी है, किसी हाँ, को किसी हराना की रेस थोड़ी नहीं है। है, अपने अपना ही करना है। जस्ट यू हैव टू डू वन ब्रिक अ डे, दैट्स इट। सो मैं बिजनेस बनाता हूँ यार, मैंने बहुत चीजें बनाई है लाइफ के अंदर, मगर सब बनाने के बाद एक ही प्रिंसिपल है, लाइफ जीनी है और रोज की एक ब्रिक अपनी ऐड करनी है हमने, ठीक है ना। बस। और ऐसा नहीं है कि मेरे को, और सिंपल है यार, लाइफ लॉन्ग है। अब इतनी उम्र में आके तो समझ ही आ गया है ना कि कल नहीं मर रहे भाई, टाइम है, जिंदगी चलेगी अभी। वी आर ऑल बियॉन्ड आवर 20s, राइट? यू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट ओवरनाइट, everything takes time. Rome was not built in a day, Right. So give yourself time, change your I life. like this one break at a day because life in like it's unforeseen. कितना लंबा है तो one break in a day is definitely good. It's बढ़िया यार, रोज थोड़ी थोड़ी खुशी, रोज छोटी सी खुशी, रोज छोटी सी विक्ट्री चाहिए बस, ठीक है ना। यार आज मैंने सही करा, मैं अपने कैलोरी काउंट में भी हूँ, मेरा प्रोटीन भी पूरा हो गया, मेरे 10,000 स्टेप भी पूरे हो गए, वाओ, दैट इज। एंड मतलब कोई डिजायर ही नहीं है यार, क्या करनी है, पैसा है, बढ़िया सब घर है, जहां मेरे को जाना है सब कुछ है, गॉड ब्लेस्ड है, कोई ऐसी क्या डिजायर, ऐसी क्या चीज है। वैसे हो भी सकती है आप लोगों की, वो अलग बात है, बट हाँ सबकी होती है, बट पर एक स्टेज पे आके you had so much that it's not that you're giving it up. You're not giving it up. It's like whenever you want, you can always have. No, I always have it, but I'm having better way, that's it. मैं पिज्जा भी खाता हूँ हफ्ते में एक बार, मैं मगर डोमिनोज और पिज्जा हट का पिज्जा नहीं खाता, मैं घूर में पिज्जा खाता हूँ जहाँ का मुझे पता है कि नीचे बेस कौन सा यूज हो रहा है, टोमेटो उसके ऊपर जो सॉस लग रही है वो फ्रेश लग रही है, चीज वो खुद बना रहे हैं, और प्रोटीन्स उनके अच्छे हैं, स्मोक चिकन लगा रहे हैं, मैं वो पिज्जा खाता हूँ यार, मैं गंदा पिज्जा नहीं खाता, ठीक है ना। हाँ, मैं बर्गर खाता हूँ, बर्गर भी स्ट्रेटेजिकली खाता हूँ, ग्रिल्ड चिकन बर्गर के अंदर डबल पैटी लगवा के, ठीक है ना, साथ में एक्स्ट्रा सैलेड लेके, और उसके ऊपर से उसका आधा बन निकाल के, सो वो मैं खाता हूँ बर्गर हफ्ते में एक बार, मतलब क्या दिक्कत है, ठीक है ना। यू हैव टू जस्ट बी स्ट्रेटेजिक अबाउट इट। बिरयानी खाओ, बिरयानी में फुल चिकन खाओ भाई, राइस थोड़ा कम खा लो यार, क्या फाइट है ना। कोई राइस खाने के लिए तो बिरयानी वैसे ही नहीं खाता, वो तो वैसे, हाँ, मीट खाने के लिए खाते हैं, मीट, आई मीन इवन इफ यू आर वेजिटेरियन और मेकिंग अ पनीर राइस डिश और something like that, eat more paneer and less rice, very simple. Right. पालक पनीर के साथ 2 रोटी खाओ, ठीक है ना, पालक के अंदर घी भी लगाओ, पनीर ज्यादा खाओ, पालक ज्यादा खाओ भाई, रोटी सिर्फ 2 खा लो यार, 1 खा लो, कुछ नहीं जाएगा आपका, मगर खाओ जरूर 1-2 रोटी, वरना सस्टेनेबल नहीं रहेगा, लाइफ पूरी लाइफ के लिए नहीं कर पाओगे। That's true. प्रैक्टिस वो बनाओ जो आप, ऐसी प्रैक्टिस बनाओ जो आप अपने आप को देख सको कि मैं लाइफ में रोज ये कर सकती हूँ। ये इंसानियत, एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे पहले बना बनाया मिलता था ना, तो इट वाज इजी फॉर मी। नाउ सिंस आई हैव टू फोकस, आई रियली हैव टू थिंक। अच्छा, फिर लगता है अरे सामने बिस्किट रखा ना, वही खा लो, कोई बात नहीं, आज का जाने देते हैं, तो उस चक्कर में गड़बड़ होता है। नहीं तो आई यूज्ड टू हैव एवरीथिंग कि ये खाना है, वो बना बनाया मिलता था, आओ खाओ छुट्टी। बिस्किट नहीं रखना ना, सामने रोस्टेड आलमंड्स रखो, सामने सीड्स रखो, ठीक है, और मैं बताता हूँ, पीनट्स रखो, मूंग की दाल को, भुनी हुई मूंग की दाल रखो सामने रखने के लिए, प्रोटीन रिच बहुत सारी चीजें हैं, आपको यकीन ही नहीं होगा।
हल्दीराम का 10 रुपए का सॉल्टेड पीनट का पैकेट जो कि शराबी खरीदते हैं, उसमें 25 ग्राम पर 100 ग्राम प्रोटीन होता है और अच्छा फैट होता है। ठेके के बाहर जो आपकी अच्छा, मूंग की उसमें दाल, भी डिस्पाइट ऑल दैट सारा? मैडम सिंपल कुछ भी नहीं होता, सिंपल सॉल्टेड पीनट है यार, होल फैट है, होल प्रोटीन है। मूंग की दाल जो हल्दीराम की भुनी हुई आती है, ठीक है ना, जो शराबी हम जैसे पीते हैं, जिसे खाते हैं, ठीक है ना, उसको भी, उसके अंदर भी येलो 25 ग्राम वाली? प्रोटीन होता है। हाँ। चने की दाल आती है, उसमें भी 25 ग्राम प्रोटीन अच्छा। होता है। आप सिर्फ अपना न्यूट्रिशन लेबल पकड़ के खरीदो। मैं कोई भी चीज, मैं लेस का पैकेट नहीं खरीदता क्योंकि उसमें आलू है, उसमें प्रोटीन नहीं है, मगर मैं नवरत्न का मिक्सर खरीद लूंगा क्योंकि नवरत्न के मिक्सर में 20 ग्राम प्रोटीन है यार। कोई भी चीज डिमोनाइज नहीं है, यू हैव टू बी स्ट्रेटेजिक, ठीक है ना। मैं चॉकलेट जब मेरा खाने का मन करता है, मैं 5 स्टार की बार नहीं खरीदता, मैं स्निकर खरीदता हूँ क्योंकि स्निकर में प्रोटीन ज्यादा है। खाता मैं फिर भी हूँ, आप समझ रहे हो, छोटी छोटी चीजें। अब मैं जैसे अमूल के मेकिंग बेटर चॉइसेस। चॉकलेट आलमंड्स लेके आया हुआ हूँ, अब मैं चॉकलेट के ट्रूफल्स भी खा सकता हूँ, बट ट्रूफल्स खाऊंगा, ट्रूफल्स में 0 प्रोटीन है। चॉकलेट वाले आलमंड्स खा रहा हूँ तो आलमंड में प्रोटीन भी है और गुड फैट भी है, और चलो चॉकलेट थोड़ी सी ऊपर से लगी है, कोई बात नहीं यार, इतनी गिल्ट तो चलती है। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? प्लीज आपके सामने अच्छी चीज रखो ना यार, भुने हुए चने मसाला लगा के रखो। और ये मैं आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बोल रहा, उबली हुई सैलेड बोरिंग, ठीक है ना, कोई भी चीज ऐसी नहीं बोल रहा जो आपने मेड से बनवानी है, अबे यार ये तो कैसे रोज रोज खाऊंगी। सब कमर्शियली अवेलेबल चीजें हैं जो ऑफ द शेल्फ आप खरीद सकते हो, पैकेट खोल के खा सकते हो। बहुत सिंपल चीजें हैं, बाजार में सब मिलता We है। need a proper group for this. अरे यार ग्रुप Shashank, किसी के लिए नहीं please चाहिए, make एफर्ट चाहिए, something. ये छोड़ो, ये सब बहाने हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। थोड़ी सी अपनी मोटिवेशन चाहिए, आपको ब्रॉड पॉइंट्स बता रहा हूँ। एक, आप मेरे से बात करते रहो, ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, मैक्रोस पे ध्यान दो, ठीक है ना। वी विल डू अनदर कॉल, फर्दर इन क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। मैं यूट्यूब पे लाइव सेशंस करूंगा, अभी वेंसडे को प्लान कर रही है अनुजा, ठीक है। देन वी विल डू समथिंग ऑन इंस्टाग्राम, ऑफ कोर्स आई नीड फैंस एंड फॉलोअर्स एंड आई नीड टू कीप माय थिंग गोइंग ऑन एज वेल, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, बट आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस, you know, and trying to help more people, you know, but I think it's a winnable battle कि मेरे ऐसा घटिया हरामखोर आदमी, ठीक है ना, जो फुल पावर बिगड़ा हुआ है, अगर वो जीत सकता है तो यार जो अच्छे स्ट्रक्चर्ड पढ़े लिखे लोग हैं वो तो डेफिनेटली जीतेंगे ही। इतना इजी है, मतलब मजाक नहीं कर रहा यार, कुछ नहीं है, थोड़ा सा डाइट, थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है ना, कि वो एक दिन में फोकस होना है और अपने आप को मोटिवेट तो रखना है, बट देन वो ही तो प्रॉब्लम हो जाता है समटाइम, लाइक यू नीड पीपल, एज अखिलेश वाज सेइंग दैट यू नीड पीपल थोड़ा सा ना, इट्स नॉट दैट एनीबडी कैन, बिकॉज वी आर इन डिफरेंट सिटीज, वी कैन पुश आवरसेल्व्स, वी विल हैव टू पुश आवरसेल्व्स, तो वो तो करना ही पड़ेगा किसी भी तरह से, पर इस तरह का जब बनने में को कमिंग तो इट्स लाइक इट्स ऑलवेज गुड। मेरी सजेशन ये है कि आप अपने आप को इस थॉट से लिमिट ना करो कि आपको दूसरे लोग चाहिए मोटिवेट होने के लिए, सॉरी, ठीक है ना। आप अपनी मोटिवेशन अपने अंदर से ढूंढो, गो हील योरसेल्फ, ठीक है ना। जिंदगी में कोई, सॉरी टू से दिस, जिंदगी में कोई नहीं आता, अपने आप को खुद ही संभालना होता है पहले। खुद को संभालने वाले बनोगे तो 4 लोग और आ जाएंगे, आई एम सॉरी, ठीक है ना, बट आई एम बीइंग ब्लंट। So I'll think about it. I'll do something about the motivation aspect. We'll create a community and whatever. But please understand that you have to find it from within. ठीक है ना, अपने आप को ढूंढो, अपने आप को ही करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे लोग तो भाई आएंगे जाएंगे। एक बार आप जब भी फ्री हो, जब आप फ्री हो तो एक प्लीज एक लिस्ट बनाइए, ये जो आपने नमकीन और उसका बताया ना, मतलब यू नीड सम काइंड ऑफ सोल फूड आल्सो। तो 5-7 तो मैंने बोल दिया है, मेरी टीम लिख रही है इनको, ये सब हम अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। रिकॉर्ड भी हो रहा है सब कुछ, ये मैं यूट्यूब पे डालूंगा ये सारा, ठीक है ना। इसके अंदर से जो जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है, काम की है, ये शेयर कर देंगे, वो पब्लिक हो जाएगी। देन और क्वेश्चंस, अब इसके बेसिस के ऊपर वी विल बी, यू नो, फॉर नेक्स्ट कॉल वी विल बी, यू नो, स्ट्रक्चरिंग मोर थिंग्स एंड विल सी हाउ वी गो, है ना। अच्छा, बिफोर एक के बीच में ना ये लोग आए हुए यार, इनसे भी बात कर लूं मैं। नैनी वर्मा जी,
ये सर बैठे हैं सुन रहे हैं हमें, कुछ तो बोल लो यार। नव्या श्री जी, नैनी I वर्मा। am left wondering regarding these people because we are telling our stories and they're listening to us. So are they voyeurs or are they going to share their No, stories Nanny is with us on. also? Nanny is on. Akhilesh, let her say something. Hi, Nanny. Hi, Shashank. How are you? Good to Hi, see you. everybody. Hi, good to see that you are with us. You were listening to everything all along, huh? Yeah. So I'm basically a good listener, not a good speaker. So, गगनदीप भाई जी दिखाओ फेस यार, एक बार तो दिखा दो, लोग सब सोच रहे हैं क्या कर रहे हो भाई। Say hello, show your faces. Navya, your mic. हेलो, सत श्री अकाल। मैं लेट हो गया। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मैं अभी 5 मिनट पहले ही ज्वाइन किया। आई एम रियली सॉरी। कोई नहीं पाजी, ये सारा मैं वैसे इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे हम डाल देंगे, तो यू वुड नॉट मिस एनीथिंग, ठीक है ना। बट कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज आई क्लोज द कॉल इन नेक्स्ट 5-10 मिनट्स, ओके। I missed the session almost because I was at work. Oh, you seem to be a Last 10 medical minutes professional. only I could attend. Yeah, I'm an anesthesiologist. I'm an ICU intensivist. Oh wow, heavy stuff, huh? Where do you work? Excuse me. Where do you work, Navya? Hello. I'm an anesthesiologist. In which ICU intensivist. Bangalore. In Bangalore. Bangalore, wow. Apollo. Yeah, oh, yeah. So cool to have people from Bangalore with us, man. I love Bangalore. Yeah. And I hope you will share this video because I missed most of it. You missed. We will share. If you have any specific questions, you can go for them right now. Okay. It's okay. I'll watch the video. I just want. Yeah. Anyone else? Sandeep, any questions? Sandeep is gone. Nanny, you have anything specific to ask me? Not really. अभी आप नमकीन और उसके बारे में बात कर रहे थे ना, हेल्दी स्नैकिंग के बारे में। सबने वो वाला पॉइंट तो मैंने देखा कि हाँ, तो मैंने देखा कि उस पे फैट्स के बारे में लिखा होता है, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। तो ये बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट नहीं है या व्हाट? तो ये काफी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। इसके अंदर देखो बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स है, मैंने काफी रिसर्च करने की कोशिश करी इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। बट ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड थोड़ा सा मेरे को ना अभी एम्बिगुअस और वेग फंडा लगता है कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो मैं जिस तरीके से फैट को ट्रीट करता हूं मैं आपको वो बता देता हूं, ठीक है। नंबर 1, एक तो होल फैट, मतलब कि अच्छी क्वालिटी का, जो मैं मेंशन कर रहा था आपको, होल फैट, गुड क्वालिटी फैट। होल फैट वुड बी लाइक आलमंड, right? Like if you are eating a whole almond, it's whole fat. If you are eating whole egg, not discarding the yolk, that is your dietary whole fat, right? If you are eating any kind of nuts, if you are eating any kind of seed, if you are eating, let's say, avocado, right? Those fats, even they are like whole fats. They are part of the food. They have not been extracted from it, and you are eating it whole, right? So they are really good for you. I don't care whether they are saturated, unsaturated, monosaturated, or whatever. As long as I'm in my calorie deficit, I'm meeting my macros, I don't care about them, you know. And then you have added fats, right? When you are, let's say, cooking a dish and putting additional fats in them, right? So these additional fats, if they are, let's say, of good quality, let's say desi ghee, butter, and let's say fish oil, or fish oil तो कुछ होता नहीं है, but you know, अब जैसे पोर्क है, पोर्क के अंदर भी अपना फैट होता है, ठीक है। मटन है, मटन के अंदर अपना फैट होता है। सो दोज आर अगेन डाइटरी फैट्स, दे आर नेचुरल अकरिंग फैट्स, ठीक है। मगर जब आप बाजार से जो रिफाइंड ऑयल खरीदते हो या जो एडिशनल फैट खरीद के हम जो डालते हैं, वो गेम अलग है, राइट। सो आई ट्राई एंड अवॉइड दैट फैट, राइट। तो जो मेरे को ऊपर से खाना है उसको घी, बटर, सेसमे ऑयल, अच्छे फैट से रखता हूं मैं, ठीक है। और बाकी जो होल फूड्स हैं, जैसे नट्स हो गए, अंडे हो गए, चीज हो गया,
all these things I'm okay with. I don't really care about the amount of fat or type of fat, as long as it is fitting in my overall macro count for the day, right? अगर मेरे को दिन में 2000 कैलोरी खानी है और मैं फैट खा रहा हूँ, पनीर खा रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि पनीर भी खाऊंगा और साथ में चावल भी पूरे खाऊंगा, ठीक है ना? कि मगर मेरे को हिसाब बनाना पड़ेगा कि भाई चावल मैं 100 ग्राम खा रहा हूँ, 100 ग्राम चावल के अंदर मुझे 300 कैलोरी मिल रही है, ठीक है? पनीर में 200 ग्राम खा रहा हूँ, तो 200 ग्राम पनीर के अंदर फैट तो है, आई अंडरस्टैंड, बट द पॉइंट इज आई स्टिल गेट let's say 35 to 40 grams of protein, right? और ओवरऑल 700 कैलोरी मेरे को मिल रही है, तो मैं इसको टोटल को काउंट करके चलूंगा कि यार 100 grams of rice I have had and 200 grams of paneer I have had, and the total I have already consumed is 1000 calories, right? तो I would not worry about anything else कि पनीर के अंदर अब मोनोसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, पॉलीसैचुरेटेड है, जो भी है, आई एम ओके विद इट. प्लस आई गिव वेराइटी टू माई बॉडी, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट नॉट टू स्टिक टू कि रोज ही आप सिर्फ पनीर पनीर खाते रहो, तो एक तरीके के फैट का आप अंदर अपने वो कर लोगे. तो गिव वेराइटी टू योर बॉडी कि भाई पनीर भी खा रहे हैं, अंडे भी खा रहे हैं, देसी घी भी जा रहा है, so different types of fat are going in your system. Almonds are also going, nuts are also going, seeds are also going, ऊपर से आप कुछ अपने खाने में खा ही लोगे, चीज भी है. So you give yourself a variation of fat rather than worrying about कि saturated है या unsaturated है. The idea is we don't go overboard on anything, तो हमें we need not worry about that aspect कि ऐसा नहीं है कि सब हमने पनीर ही खाना है तो हम उसके फैट के बारे में चिंता करें, ठीक है ना? हमने पनीर भी खाना है, अंडे भी खाने हैं, हमने नट्स भी खाने हैं, ठीक है ना? हमने राजमा भी खाने हैं. तो वी गिव आवर सिस्टम ऑल काइंड्स ऑफ फैट्स ऑन डिफरेंट डेज एंड डिफरेंट टाइम्स. So that's my take on this, Nani. Yeah. Can I intervene? Please. Yeah, and about the trans fats, it is produced when the same oil when we use for frying something, when we keep reheating it, the trans fats are produced. And this is one of the fat which is considered definitely unhealthy. So Right. how we can avoid is don't reheat. Once if you use any oil for frying, like I'll get it like kebab, just throw it after that. Use as minimal oil as possible and throw the remaining oil. Please don't use it for anything else. Like don't use it for cooking again. And I think they also say that these what is the word, Navya? And don't reheat it. Carcinogenic. What is the word for cancer inducing? That's also trans fats itself. That reheating of the oils will produce carcinogens as well. I don't know how to pronounce that word, but yeah, so that's what it does. Carcinogen. Yeah. Gagan, anything you have, my friend? Yeah, hello everyone. Joined pretty late. Late होने की आदत छूटेगी नहीं हमारी, लेट कमर ही रहेंगे. So where do we start? Is like start बहुत बार किया है, but then end up going in the same cycle again. So like talking about macros, so how do you keep a track of it? यार मैक्रोज, अब देखो ये थोड़ा मेरे लिए ना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि पर्सनली मैं अपने दिमाग में ही ट्रैक रखता हूँ, ठीक है? Okay, I thought I was asking a simple one. तो कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि मैं कोई ऐप नहीं यूज करता, मैं कोई एक्सेल शीट यूज नहीं करता, मैं कोई नोटपैड यूज नहीं करता. उसके दो कारण हैं. एक तो सीरियसली, हाँ, एक तो गॉड ब्लेसेडली मेरा नंबर्स में दिमाग बेटर चलता है, ठीक है? मेरे को समझ आते हैं. कई लोगों को मेरे को इमोशंस कम समझ आते हैं, नंबर्स ज्यादा समझ आते हैं, सो आई एम दैट काइंड ऑफ ब्रेन, राइट? एंड दूसरा मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप इसको ब्रेन से सीखोगे कैलकुलेट करना, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग फोन के ऊपर यू जस्ट हैव टू गूगल बेसिक, राइट सिर्फ, और उसमें हाईलाइट होके पूरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उस फूड का आ जाता है, ठीक है? और उसको पढ़ते जाओ बस.
आपको फिर रियलाइज होगा कि लाइफ के अंदर आप 20-30 ही ऐसे फूड्स हैं जो बहुत रेगुलरली खा रहे हो। आप समझ रहे हो कि जो नए फूड्स होंगे, नए टाइप की चीजें होंगी, वो भी आएंगी, बट वो बहुत रेयर आएंगी, ठीक है ना। मगर गिन चुन के वो 20-30 चीजें ही होंगी। पनीर, अंडे, चिकन, दालें, राइस, ग्रेन्स, बेसन, मैदा, अलग अलग तरीके के घी, ठीक है ना, मतलब गिन के कर लोगे आप। तो आप जब हर चीज को देखना शुरू करोगे, बस गूगल करो, ठीक है ना, न्यूट्रिशन ऑफ आलमंड्स, न्यूट्रिशन ऑफ व्हीट, न्यूट्रिशन ऑफ व्हीट फ्लावर, न्यूट्रिशन ऑफ पोटेटोज, न्यूट्रिशन ऑफ एप्पल, है ना, हर चीज का डेटा एक एक सेकंड में आने लग जाता है मेरे सामने, ठीक है ना। तो वो अब 4 बार मैं गूगल कर लिया यार एप्पल का, बार बार देखने के लिए पिछले 3 महीने में, तो अपना भी याद होने लग गया। तो फिर वो माइंड में आ जाएगा फिर कि माइंड में हाँ अपना आज का साइलेंट देखना। माइंड में आ गया है मेरे। अब मैं एप्पल खाता हूँ तो मुझे पता होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है ना, क्योंकि मेरा लमसम मेरे को पता है कि यार 100 ग्राम पनीर है, इसमें 300 कैलोरी होनी है, 1000 बार पढ़ ली मैंने, 18 ग्राम प्रोटीन होता है, हर बार पैक खरीदते हुए पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे को पता है कहाँ फिट हो रहा है, कैसे फिट हो रहा है, कैसे खाना है, कहाँ खाना है। तो लाइफस्टाइल के अंदर वो चीजें फिट होने शुरू हो जाती हैं। इट्स जस्ट द इंफॉर्मेशन यू आर फीडिंग टू द ब्रेन कि मैंने, अब चिकन है, मेरे को पता है यार चिकन के अंदर 100 ग्राम के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन होता है भाई, ठीक है ना। कैलोरीज एक बार निकाल ली, आप 6 बार उसको गूगल कर लोगे तो 7वीं बार आपको याद है भाई यार ये तो वही होता है, मुझे याद है, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं डिश बना रहा हूँ, मैंने भाई अपनी, आपने मान लो घर में 3 लोग हो, 4 लोग हो, आप चिकन बना रहे हो, ठीक है ना, 4 लोग के अंदर अपना कैलकुलेट कर लो यार, 100 ग्राम अपना मैंने मक्खन डाला है, या मान लो 50 ग्राम मैंने इसमें घी डाल दिया है, ठीक है ना, आधा किलो चिकन डाला है, आधा किलो चिकन अनकुक्ड का मैंने गूगल करा था, उसके अंदर 1000 कैलोरी होती है। 100 ग्राम मैंने 50 ग्राम इसमें मैंने घी डाला है, 50 ग्राम के अंदर 400-450 कैलोरी होती है। टमाटर प्याज वैसे ही फ्री होते हैं, मिर्ची फ्री होती है, गार्लिक फ्री होता है, सारे मसाले फ्री होते हैं, उनको तो कोई गिनने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। सारा सब मिला के 150 कैलोरी निकलेंगी। तो आप 1500 कैलोरी की डिश बना लिया आपने, तो आप 4 लोग हो फैमिली के अंदर, भाई सबके पल्ले जितनी इतनी पड़ रही है अप्रोक्सीमेटली आपको पता ही है, प्रोटीन कितना कितना गया आपको पता ही है, ठीक है ना। और एक सबसे बड़ी टिप, जो सबसे बड़ा चेंज मैंने लाइफ में करा था, एक वेइंग स्केल खरीदा था किचन का, ठीक है ना, 200-400। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट ओनली, वो खरीद लूं? लाइफ चेंजिंग है ब्रो, वो लाइफ चेंजिंग है। मैं हर चीज को पहले काट काट के उसमें तोल के देखता था 100 ग्राम होता कितना है, समझ रहे हो। सो दैट इज समथिंग फिट इन आवर माइंड कि यार अच्छा 100 ग्राम आलू दिखते कितने हैं, चावल में खा तो रहा हूं, बट 100 ग्राम कच्चे चावल और 100 ग्राम पके हुए चावल कितने दिखते हैं। तो वंस यू गेट एन एस्टिमेट, तो मेरे को शुरू में बस जैसे मैंने स्केल खरीदा तो राइस, कच्चे राइस, ठीक है ना, इनिशियली मेरे को वेट करने पड़े कि अच्छा यार 5-7 बार करें, अबे हर बार 100 ग्राम तो इतने ही होते हैं, अब क्या वेट करना है, अंदाजे से 100 ग्राम मुझे पता लग गया, ठीक है ना। कुक होने के बाद वो 100 ग्राम कितने दिखते हैं, ठीक है, और कुक राइस को भी मैंने वेट कर करके 5-7 बार देख लिया, तो मेरे को पता लग गया यार प्लेट में इतने होते हैं तो ये 100 ग्राम होते हैं, इतने होंगे तो 50 ग्राम होते हैं, मेरे को बाद में जरूरत ही नहीं पड़ती अब, ठीक है ना। रोटी बनती है, मम्मी रोटी बनाती है या मेड बनाती है या बीवी बनाती है या आप बनाते हो, ठीक है ना। आप बनाते हो, आटे की लोई है अपनी, आटे की लोई को स्केल पे रखो, नाप लो यार, मम्मी बनाती है, मम्मी की लोई नाप लो कि मम्मी की लोई जो है आटे की बॉल है 50 ग्राम की बन रही है, ठीक है ना। तो आपको पता है एक रोटी के अंदर 50 ग्राम आटा जा रहा है, आटे की गूगल करो कैलोरीज, हो गया खत्म बात। तो हर चीज आप अपने स्केल से, अब मैं क्या करता था भाई, चम्मच बटर भी खा रहा हूँ, अमूल का मक्खन आता है, टिक्की काटी, ठीक है ना, टिक्की के अंदर हमें एक तो पता है 100 ग्राम की टिक्की है, 4 पीस इक्वल करूंगा तो 25 ग्राम वैसे ही हो गए, ठीक है ना। एक तो मैथमेटिक्स वहीं से हो गई, वरना उसको भी जितना पीस काटा स्केल पे रखा, उसके ऊपर हमें 20 ग्राम मक्खन है, बहुत बढ़िया यार बनाओ ऑमलेट, 20 ग्राम मक्खन में कौन रोक रहा है। 10 ग्राम मक्खन, सिर्फ 10 ग्राम मक्खन में इतना ब्यूटीफुल 4 अंडे का ऑमलेट बनता है कि क्या बताऊं आपको। ओके। और अपने आप को तसल्ली भी रहती है यार, मैं, अच्छा एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आ जाता है इसमें, यार मैं मक्खन खा रहा हूँ, अंडे खा रहा हूँ, तो मैं रो क्यों रहा हूँ, सब कुछ तो मैं बढ़िया खा रहा हूँ, घी में बना हुआ मैंने चिकन खाया है, तो देयर इज नो रीजन टू बी सैड, राइट। जो वो गिल्ट फैक्टर लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो बढ़िया चीजें खा रहे हैं यार हम, जो मीट खाता है वो मीट खाए, जो वेज खाता है उसमें प्रीमियम वेजीज, प्रीमियम चीजें खानी है भाई, अच्छी चीजें जिसको देख के दुनिया कहती है काश मैं खा सकता, वो खाना है आपने। बादाम खाने हैं, काजू खाने हैं, सीड्स खाने हैं,
ठीक है ना, दो ज्यादा थिंग्स, पनीर खाना है, चीज खाने हैं, ठीक है ना, बढ़िया यार, लैविश लाइफस्टाइल है, ठीक है ना, तमीज से खाना है, बट हाँ कि सिस्टम है खाने का, ऐसा नहीं है कि यार हम वो भी खा रहे हैं साथ में, भैया रोज के आधा किलो चावल भी अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना, फिर भाई मक्के की रोटी भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है, मतलब सब कुछ नहीं, हाँ मना किसी चीज के लिए नहीं है, बट यू हैव टू पेस योरसेल्फ, ठीक है ना, कि ये हमें तो ये, जैसे मैं पहले भी मेंशन कर रहा था, हमें पता है कि यार हमारे 2-3 मील हमें रोज के खाने ही है, हफ्ते के अंदर 21 मील है ही भाई, बहुत होते हैं 21 मील, 21 बार खुश होने का मौका है मेरे पास, 21 बार खुश होने का मौका है, और फिर उसको 21 मील को आप बहुत तरीके से, 21 मील को आप बहुत तरीके से परम्यूटेट एंड कॉम्बिनेट भी कर सकते हो, जैसे मैंने अपने आप को तसल्ली दी, 21 मील है यार, 14 मील तो मैं तमीज से खाऊंगा एकदम, ठीक है ना, और वो कोई बात नहीं, आई विल अलाउ माई सेल्फ लिबर्टी ऑफ 5-7 मील्स इन अ वीक, you know, at least 70% I'm doing right, you know, so that is, I mean, I'm just sharing the hacks I use for my own brain and you know how I did it on long term, No, yeah. right, कि जैसे बीच में हम खो भी जाते हैं यार, इस हफ्ते में थोड़ा वीक फील कर रहा हूँ या इमोशनली अच्छा नहीं फील कर रहा, और मेरा मन कर रहा है मेरे को चीजें खाने का, ठीक है ना, भटूरे खाने हैं, बटर चिकन और नान खाना है, कोई बात नहीं यार, एक दिन में नहीं खाना सब कुछ, ठीक है ना, आज सुबेरे मैंने छोले भटूरे की प्लेट खा ली, शाम को मैंने उबले अंडे और सैलेड खा लिए, ठीक है ना, अगले दिन मैंने भाई सुबेरे अपना कुछ हेल्दी सा पनीर ग्रिल्ड सैंडविच खा लिया, शाम को मैंने भाई कुछ अपना बर्गर खा लिया, बर्गर के अंदर भी मैंने इस तरीके से खाया कि प्रोटीन को ऑप्टिमाइज करा, ठीक है ना, तो इस तरीके से हर चीज को लेके पूरा हफ्ता मैंने कुछ कुछ खा लूंगा यार, कोई बात नहीं, मगर मेरे पास 7 मील है ना भाई, बट बाकी के 14 मील ढंग से खाने हैं, मतलब बहुत सारे तरीके से वी कैन स्ट्रक्चर इट, यू नो, और कोई भी चीज बुरी नहीं है, दैट इज व्हाट I think when you have calculated it properly, then at least you'll know कि हाँ ठीक है, मैं बैलेंस कर लूंगा, अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा भी खाया है तो आई कैन बैलेंस इट, तो फिर दिमाग में वो गिल्ट नहीं रहेगा कि यार मैंने ये खाया था। हाँ, और गिल्ट है तो अपने आप ही उसे बैलेंस कर लोगे आप, ठीक है ना, गिल्ट इज नॉट अ बुरी थिंग, गिल्ट का मतलब है यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, तो कोई बात नहीं यार, अगले मील के अंदर भाई पनीर का सैलेड खा ले यार, मैं कौन सा तेरे को मना, मैं तेरे से कौन सा कह रहा हूँ कि घास फूस खा, पनीर खा ले, कुछ ऐसी चीज खा ले अपने मैक्रोज के हिसाब से, ठीक है ना, विच इज मोर सेटिस्फाइंग, विच हैज मोर प्रोटीन इन इट, विच इज मोर नरिशिंग, गिव्स यू मोर फाइबर, यू नो, ऐसा नहीं है ना कि भाई सुबेरे मैं भटूरे खाऊंगा और शाम को फिर मैं चाउमीन खाऊंगा और रात को मैं बटर चिकन खाऊंगा, तो वो थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है ना, कि भाई मैं आज बटर चिकन खाऊंगा, कल, अब चाउमीन खाने का भी तरीका है यार, मैं वहां था साउथ इंडिया में, ठीक है, अब मैं बाहर घूमता होता हूँ, मील्स तो चाहिए तेरे को, आप यू नो दैट आई एम आउटसाइड ऑल द टाइम, राइट, सो देयर इज अ स्ट्रेटजी, आई गो टू द स्ट्रीट फूड गाय, द कार्ट वेंडर, ठीक है ना, उसको बोलता हूँ भाई चल निकाल अपनी कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर उसने डाला तेल, मैं तेल कम डाल क्योंकि तेल तेरा अच्छा नहीं है, मुझे पता है घटिया है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा तो मैं खा सकता हूँ, मर नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा तेल डलवाया, अब वो गोभी डालता है, मैं गोभी ज्यादा डाल, ठीक है, गोभी बहुत सारी डलवा दी, पत्ता गोभी जो लोग कहते हैं सस्ती आइटम है हम नहीं खाएंगे, मैं कहता हूँ तो वही खिला मेरे को, कोई बात नहीं, बहुत सारी गोभी डाली, सॉसेस में कोई दिक्कत नहीं, फाइबर है और पूरा न्यूट्रिएंट्स है यार, पत्ता है सारा, ठीक है ना, ग्रीन वेजिटेबल है, आपको फुल न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है, उसको फिर पर 3-4 अंडे डलवा दो, ठीक है ना, कि 3 अंडे डाल दोगे, 3 अंडे, हाँ यार क्या हो गया भाई, 3 अंडे तू डालना भाई, टेंशन क्यों ले रहा है, मैं दूंगा पैसे तेरे को यार, है ना, भाई वो 3 अंडे डालेगा, फिर कहूंगा 2 डबल चिकन डाल इसमें, डबल चिकन, मैं कहूँ तू टेंशन ना ले यार, तू डाल, तो भाई वो फिर डबल चिकन डालेगा, अब फिर आएगी राइस की बारी, मैं कहूंगा इतने से राइस डाल दे बस, यू नो, जो मेरे को पता है 50 ग्राम कितने होते हैं, क्योंकि मैंने अपने घर पे उसे कैलकुलेट करके देखा हुआ है, समझ रहे हो, तो मैंने 50 ग्राम, मैंने 50 ग्राम राइस ही उसमें डलवाए, अप्रोक्स 60 हो जाएंगे तो क्या हो गया, या 40 हो गए तो क्या हो गया, भाई कुछ नहीं हो रहा, 10 ग्राम में इतना ज्यादा मरने की जरूरत नहीं है, तो 50 ग्राम के आसपास राइस डलवा दिए, टोटल मिला के कार्बोहाइड्रेट से मेरे को कितना आया, 150 कैलोरी आया, अंडे 4 उसमें मैंने पूरे पड़वा दिए, 300 कैलोरी मेरे को अंडों से आ गए, 30 ग्राम प्रोटीन आ गया, चिकन डलवाया इतना सारा मैंने उसके अंदर और आ गए, ठीक है ना, सब्जियां डलवा दी, पूरा बढ़िया इतना मैसिव मील बन जाता है ना कि आप कुछ खा नहीं सकते दोबारा, ठीक है ना, और पूरी सेटिस्फेक्शन रहती है, प्रोटीन पूरा रहता है, आप गए नहीं, हाँ, और कहने को स्ट्रीट फूड हो गया, होलसम मील हो गई, हाँ, और सड़क पे बनवाया यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना, कोई होटल में जाके शेफ को रिक्वेस्ट नहीं करी, जो अपना पटरी पे खड़ा हो गया भाई बना रहा है उसी ने बना दिया, भाई फ्राइड राइस तो बनता है, मतलब बहुत तरीके से आप प्ले कर सकते हो यार,
कि और फ्लेवर पूरा आता है, पूरा सॉसेस होती हैं, जो भी सॉस डलती है फ्राइड राइस के अंदर, भाई सब कुछ डालो यार, कौन मना कर रहा है, अपने टेस्ट के अनुसार डालो। मेरे को कम पसंद है मैं कम डालता हूँ, आपको ज्यादा पसंद है आप ज्यादा डालो, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ आई हैव डन माय थिंग ब्रो। हर चीज का हैक निकाल के, जुगाड़ निकाल के यार, कि मैक्रोस समझो, मैक्रोस को फिर अपने आप परम्यूटेट। आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आप खा रहे पहला हो उसमें चैप्टर इस कितना किताब का क्या वही है। है, पहला चैप्टर उस किताब का यही है, इस किताब का वही है। तभी मैंने सबसे ऊपर वही राइट टॉपिक लिखा था कि मैक्रोस को समझना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट राइट ओके है ना, इस कॉल को हम एंड करेंगे, मगर इफ यू गाइज वांट टू कंटिन्यू, मैं दोबारा, ये अनुजा ने मेरे ख्याल से 7 o'clock वेंसडे को ये अपना यूट्यूब पे सेशन शेड्यूल कर रहे हैं हम लोग इवनिंग में, ठीक है। तो या तो वहां पे, ठीक है, वरना अगला सेशन जब भी होगा, इंडिविजुअल कॉल्स एंड मैसेजेस मेरे लिए आंसर करना मुश्किल होता है, बट दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस सेशन सो दैट वी कैन हैव अ ग्रुप थिंगी। बट मैक्रोस के ऊपर हम और बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा गूगल करो, गूगल इज योर बेस्ट टीचर। यूट्यूब पे जाके थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैक्रोज में 3 चीजें, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है, और ये क्या होता है अपना, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। 3 ही मैक्रो होते हैं, इन तीनों को समझने की कोशिश करो। और अपने जो कॉमनली ईटन फूड्स हैं उनका न्यूट्रिशन रीड करो कि यार फिश में क्या न्यूट्रिशन है, पनीर में क्या है, एप्पल में क्या है, ठीक है ना। उनके मैक्रोज देखो, सब में देखो कि यार किस में प्रोटीन ज्यादा है, किस में फैट है, किस में शुगर है। डोंट गो इनटू डिटेल इनटू कौन से टाइप की शुगर या कौन से टाइप का फैट या कौन से टाइप का प्रोटीन। जस्ट फिगर आउट कि प्रोटीन कितना है, फैट कितना है और शुगर कितना है। डू दैट एज एन एक्सरसाइज फॉर 15-20 ऑफ द फूड्स दैट यू ईट and you will see that you will start learning yourself, right? फूड के लेबल्स के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। I hope my team is making a note so we can make a discussion on food labels, how to read a food label, कि जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, उसमें क्या चीज ऑप्टिमाइज करनी है, कैसे करनी है, 1-2 एग्जांपल में उसके लेके देख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो मे बी यू गाइस कैन ब्रिंग योर ओन फूड लेबल एंड हेल्प मी, आस्क मी कि how do you interpret it, right? So that is another thing we can do. So that is on my head. Any other suggestion you guys have, you can let me know now and we will consider it for the next session that we have, all right? So yeah, all right guys. Naini, Navya, Akhilesh, Sangeeta, abhi ke liye I think can we close this? Yeah. है ना? Yeah. So we will try and Yeah, make sure. some notes from this. We will try and find some relevant recordings from this call, put them on YouTube, put them on the blog, and share them with you guys, right? So that you guys know what we talked about, right? And hopefully Right. we'll catch up again soon on this. अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी बता दीजिए, कोई सजेशन है तो बता दीजिए। I think we are good. Thank you, Shashank, for taking out the time to talk to us. No It's worries, inspiring. यार. I'm loving it actually. It's like you know कि सुबेरे उठ के यार जिंदगी में कोई पर्पस होना चाहिए ना। तो now I feel like you know, like by helping people, by helping my friends, you know, like that is my life purpose. You know, वो खाने की recommendation करके मुझे मजा नहीं आ रहा था ना, but इसके अंदर लाइफ में पर्पस लगता है। You are actually, you know what I'm saying, right? कि the things I understand. beyond I get money, beyond fame. When you are famous, you are rich. You know, you look for other things of finding satisfaction, right? So this is my way of finding satisfaction. I'm famous, I'm rich. You know, I just need to be happy now. We should still celebrate Chole Bhature Day and GJ days. Cheers, man. That would be so Good. cool. Why not? Why not? And thankfully, it's so far. I don't have to think about it right now. Second October. Okay, everyone have a fantastic Sunday, and we'll be meeting soon as Chalo, guys. he's saying. Okay, we'll keep Yeah, you sure. posted, yeah? All right, guys. Have a Yeah, good sure. day ahead. Thank you. Thank you Bye. so much. Bye. Bye. Cheers. Bye. Bye. Let's do Bye. it. Cheers, guys. We'll do. Bye.